Hello and welcome dear students. Let's continue with our revision lecture, Hindi English mix version, revision of full portion of CA final direct tax. May 20, November 20 exams हम लोग कर रहे हैं in the order of the textbook. Last chapter जो हमने किया that was a chapter called dividend and bonus stripping. Order of textbook चल रहे, कुछ important chapters आने वाले थे इसलिए break required था. Let's continue. हमारा जो अगला chapter है, the next chapter that we have is a chapter called assessment of partnership firm. This chapter has given us all tax treatment applicable for partnership firm including LLP. जहां जहां फॉर्म कवर्ड है वहां वहां LLP पता है हमको, एक जगह पे नहीं है, वो आ जाएगा डिस्कशन के अंदर. सो एंटायर टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड LLP विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. कोई लेस इंपॉर्टेंट चाहे सेक्शन होगा तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाला जैसे 40B वगैरह हम डिटेल के अंदर करेंगे. लेट्स कंटिन्यू. ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट बुक हिंदी इंग्लिश मिक्स रिविजन लेक्चर May 20, November 20. फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर बोला गया है दैट पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन इज नॉट गिवन हियर. फर्म यू विल हैव टू टेक फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म एक्ट, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड LLP एक्ट. देन इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज partnership firm is an assessee, so accessible to tax. That is the reason we are learning the chapter. And lastly partnership firm का tax rate जो मेन आपको घर पे लेके जाना है उसकी बात करेंगे. Flat rate, basic tax will be flat rate of 30%, no basic exemption, no slab rates, every rupee will be taxable at flat 30. इसके अंदर we will be adding surcharge up to 1 crore, no surcharge. So mind you, जो 50 लाख वाला surcharge है that is applicable only for इंडिविजुअल HUF, VOP, BY, AJP. सेकेंडली जो 25% और 37% जो नया वाला सरचार्ज आया दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ओनली फॉर देम. यहां पे नहीं आया, कंपनीज में भी नहीं आया. एंड थर्डली 1 करोड़ के बाद भी 15 नहीं सिर्फ 12%, जो एज इट इज जो रूल था वो ही चलेगा. ओनली वन रेट ऑफ सरचार्ज आफ्टर 1 करोड़ एट 12%, HEC एट 4% इज ऑलवेज गोइंग टू गेट attracted. This is tax rate. Residential status की बात करें तो one decision also taken in India, then the firm is going to be considered as resident. Next, any share of profit given by firm to partner, share of profit is going to be exempt. Share of profit paid by firm to partner is going to be exempt because firm has already paid tax. अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी पे कर रहा है तो उसका डिडक्शन लेगा, सो दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर. लेकिन दैट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर सैलरी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. नाउ दिस टेक्स अस टू टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस. हम लोग PGBP पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहला 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट फर्म एंड रेसिडेंट HUF. Resident individual, resident HUF, resident firm excluding LLP. The only place of tax treatment where partnership firm and LLP का tax treatment अलग है is that LLP को 44AD presumptive taxation नहीं मिलेगा. एंड दूसरी बात 40B जो सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू पार्टनर्स है वो फर्म डिडक्शन लेगा, पार्टनर विल पे टैक्स. शेयर ऑफ प्रॉफिट फर्म विल पे टैक्स, पार्टनर के लिए एग्जाम्पल. लेकिन रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट फर्म विल टेक डिडक्शन, पार्टनर विल पे टैक्स. If firm is taking deduction, partner will pay tax. तो यहाँ पे टैक्स आर्बिट्राज होगा. Firm will save at 30%, partner will pay tax at slab, and therefore we have 40B. 40B has laid down the limits. क्या limits? इससे ज्यादा एक फर्म अपने पार्टनर्स को पे कर सकता है. The limit is on deduction. What is the limit for interest? Actual as per deed or 12% per annum simple interest, whichever is lower. Working partner, sleeping partner किसी को भी दोगे तो चलेगा. And as far as remuneration is concerned, again it is lowest of the three, लेकिन सबसे पहले only for working partner. Any remuneration paid to sleeping partner is going to be fully disallowed, 100% disallowed. What is the limit for working partner? Again lowest of the three, actual amount as per deed. Yeah, for the third amount you have to find out whether there is book profit or book loss. If there is book loss, the third limit is flat 1,50,000. In case of book loss, it is going to be flat 1,50,000. In case there is book profit, तो first 3 lakh के ऊपर 90%, बैलेंस के ऊपर we will be doing 60%, but this will also not go less than 1,50,000 क्योंकि लॉस केसेस में भी मिलता है. लेकिन माइंड यू डायरेक्ट 150 मत करना, इट इज गोइंग टू बी एक्चुअल डीड या फिर ये तीसरा वाला अमाउंट विच एवर इज लोएस्ट. व्हाट इज बुक प्रॉफिट? आप अपना पूरा का पूरा PGBP का ट्रीटमेंट लगाओगे नेट प्रॉफिट करके, ऑल एडजस्टमेंट्स करके. इनफैक्ट रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है उसमें भी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐड हो जाएगा. एंड इंटरेस्ट तो एज पर टैक्स जो 12% की लिमिट के अंदर है वो लेस भी हो जाएगा. द PGBP बिफोर रेम्यूनरेशन डिडक्शन दैट इज योर बुक प्रॉफिट. नेगेटिव हुआ तो फ्लैट 150 इज द थर्ड लिमिट, एंड पॉजिटिव हुआ तो स्लैब्स के हिसाब से वो थर्ड लिमिट, एक्चुअल डीड और थर्ड लिमिट whichever is lowest. That was the PGBP part. Capital gain, transfer of capital asset by partner to firm, market value नहीं होगा, it will be value recorded in books of account, sale consideration. And transfer of capital asset by firm to partner, market value will be taken as sale consideration. Loss pertaining to outgoing partner will be
not allowed as carry forward to the firm except unabsorbed depreciation. That is the set of part. उसके बाद में कुछ सेक्शन 184, 185, 187 change in constitution, succession, conditions to be assessed as firm, all that you can read through. जो main section है वो हमने डिस्कस कर लिया, मेन सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया. दैट वाज आवर चैप्टर असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ऑल्सो वो जो हमारे ICDS 2 के हिसाब से इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और AOP ऑल्सो द stock whether business is continued or discontinued will always be valued at net realizable value. यहां पर वो शक्ति ट्रेडिंग का केस लॉ ओवरराइड हुआ है बाय ICDS 2. लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट चैप्टर असेसमेंट ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट. हमारा जो अगला चैप्टर है दैट इज असेसमेंट ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट. पहली बात तो रिलीजियस ट्रस्ट, रिलीजियस पर्पस नॉट डिफाइंड. चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल पर्पस डिफाइंड इन एन इंक्लूसिव मैनर. रिलीफ फॉर द पुअर, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन, योगा, प्रेजर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और मॉन्यूमेंट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट और एनी अदर और प्रेजर्वेशन ऑफ objects or monuments of artistic or historic interest या environment will cover wildlife, watersheds and forest. लास्ट में आता है any other object of general public utility. लेकिन अगर इसमें आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो देन दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. वन, you can have maximum 20% as commercial receipts and second, आपकी कमर्शियल एक्टिविटी आपके चैरिटी से रिलेटेड होनी चाहिए. बाकी सब केस में अगर आप बिजनेस करते हो एक ही कंडीशन है, प्रॉफिट शुड बी यूज्ड फॉर चैरिटी. ट्रस्ट इज अलाउड टू डू बिजनेस. सो पहले वही क्लियर कर देता हूं. ट्रस्ट इज अलाउड टू डू बिजनेस. फर्स्ट कंडीशन, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर एवरी बिजनेस एंड सेकंड, बिजनेस शुड बी इंसिडेंटल. इंसिडेंटल का मतलब ऐसा नहीं कि रिलेटेड. इंसिडेंटल मतलब प्रॉफिट शुड बी यूज्ड फॉर चैरिटी. सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट धर्मोदय, थांती ट्रस्ट. प्रॉफिट शुड बी यूज्ड फॉर चैरिटी. प्रॉफिट शुड बी यूज्ड फॉर चैरिटी. एंड सिर्फ एडवांसमेंट वाले के लिए दो एक्स्ट्रा कंडीशन है. 20% का लिमिट एंड दैट द रिलेशन शुड बी देयर बिटवीन चैरिटेबल एक्टिविटी एंड कमर्शियल एक्टिविटी. इसके बाद में एग्जेम्पशन के लिए सारे ही कंडीशंस को, ये तो बिजनेस करने वाले ट्रस्ट के कंडीशंस थे. ऑल द ट्रस्ट आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस टू गेट एग्जेम्पशन. व्हाट आर द कंडीशंस? रजिस्ट्रेशन, books of accounts, get them audited, file ROI on time and utilization of funds should be invested in the modes given under section 11 subsection 5. इसमें रजिस्ट्रेशन की कंडीशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोस्पेक्टिव. लेकिन अगर आपका पास्ट ईयर्स का सिर्फ एक ही डिफॉल्ट है दैट इज रजिस्ट्रेशन, देन देयर विल बी नो स्क्रूटिनी और रीअसेसमेंट का नोटिस फॉर पास्ट ईयर्स. दैट मींस रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोस्पेक्टिव बट exemption you can get for past years because past years का कोई भी opening नहीं किया जाएगा. If there is any modification of objects then the trust will have to apply for fresh registration within a period of 30 days. Once a trust takes this registration, it will be eligible for the 15% exemption that we get in this chapter, but the trust will not get any exemption under section 10. Very important. Trust को section 10 के अंदर कोई भी exemption नहीं मिलेगा except 10(1) एग्रीकल्चर वाला and 10(23)(c) जो एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए एक एग्जेम्पशन प्रिस्क्राइब किया गया. एक्सेप्ट दैट द ट्रस्ट विल नॉट गेट, मतलब 1034, 1035 वो सब नहीं मिलता और इसीलिए 115 BBDA अट्रैक्ट नहीं करता है चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर. सो वंस अ ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन देन इट विल नॉट गेट एनी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 एक्सेप्ट 10(1) and 1023(c). Registration will be granted by the Commissioner of Income Tax within a period of 6 months from the end of the month in which you make your application. अगर वो आपके एप्लीकेशन को डिस्पोज नहीं करता है तो deemed to be registered, लेकिन from the date where the 6 months expire, registration का effective date वो वाला काउंट किया जाएगा. If he denies your registration then he has to give opportunity of being heard. You can appeal to ITAT and ये CIT ही आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है. If he feels that there is some violation of any condition then the CIT has the power to cancel. Again opportunity of being heard, पॉन्ज मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देना पड़ेगा और ये भी अपीलेबल है. इस चैरिटेबल ट्रस्ट के पूरे चैप्टर में एक ही अमेंडमेंट आया जब CIT आपको रजिस्ट्रेशन दे रहा है या CIT आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है. ऑन बोथ ओकेशंस CIT विल नाउ बी एम्पावर्ड कि आपका CIT सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के ही रूल्स का नहीं, अगर ट्रस्ट को कोई और लॉ अप्लाई करता है, इफ द ट्रस्ट इज कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर एप्लीकेबल लॉ, उसका भी कंप्लायंस चेक करेगा. जैसे कोई ट्रस्ट रजिस्टर होता है आपका कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 कंपनी, तो वहां का भी कंप्लायंस. सोसाइटीज एक्ट है तो अगर वहां का भी कंप्लायंस, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है तो वहां का भी कंप्लायंस. द CIT विल नाउ बी एम्पावर्ड टू चेक कंप्लायंस विद अदर एप्लीकेबल लॉ ऑल्सो. अगर उसका भी वायोलेशन हुआ है तो CIT विल बी एम्पावर्ड टू डिनाई रजिस्ट्रेशन
या कैंसल रजिस्ट्रेशन. ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अपीलेबल एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैज टू बी प्रोवाइडेड. दैट्स द ओनली अमेंड. इसके आगे हम जाते हैं चैप्टर के कैलकुलेशन के पार्ट के अंदर. चैरिटेबल ट्रस्ट इज गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर 15% एग्जेम्पशन ऑन इट्स नेट इनकम. बट व्हाट इज नेट इनकम? सबसे पहले वी विल टेक डोनेशन एक्सक्लूडिंग कॉर्पस. इसका मतलब ये नहीं कि कॉर्पस में exemption नहीं है तो taxable. Corpus is excluded from the definition of income. Donation excluding corpus. Then we take income from property held under trust. इस property में immovable, movable, bank interest, all types of income generating asset जो भी income है, all that will be taken. And we will take business income. Business income में gross profit, direct income minus direct expenses, और उसमें भी depreciation नहीं आएगा क्योंकि obviously हमको पता है application of income मिलता है. हम है ना रिविजन कर रहे हैं, मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं. Okay, so this is net income. 15% is going to be exempt. Balance 85% के ऊपर अगर आपको exemption चाहिए, option 1 application of income for approved objects. इसके अंदर capital और revenue is also allowed, both allowed. आप during the year करो या after the year and before the due date of filing return करो, that is also going to be allowed. उसका भी आपको benefit मिल जाएगा. And donation to other trust अगर दिया, excluding corpus donation, तो उसका भी benefit. Basically खर्चा करो. If you spend 85%, 100 will be exempt क्योंकि 15 तो by default exempt होता है. खर्चा नहीं करना है, कोई major future dream है, goal है, then you can apply for accumulation of income. वो अगला concept है. And any income not received हो तो हम पहले ही minus कर देते हैं. This is going to be the taxable income of a trust. नेट इनकम का 15% एग्जेम्प्ट एंड बैलेंस 85% में से वी विल सबट्रैक्ट अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अक्यूमुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम. दैट इज हाउ वी विल बी कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट. और ये एप्लीकेशन करने के टाइम पे पीजीबीपी के कुछ डिसअलावेंस, टीडीएस नहीं काटा या जो एक्सेसिव पेमेंट मोर देन कैश का अगर आपने लिमिट से पे किया 10,000 से ज्यादा, तो वो वाले डिसअलावेंसेस आपके यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट को भी इन्वोक होगा. इन दिस इट इज नेसेसरी टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम इन डिटेल, प्राइमरीली बिकॉज अक्यूमुलेशन के बिना कभी आपका कंप्यूटेशन कंप्लीट ही नहीं होगा. सो इफ वी हैव एनी मेजर फ्यूचर गोल इन माइंड, वी कैन अप्लाई फॉर अक्यूमुलेशन द ROI एज वेल एज द एप्लीकेशन फॉर अक्यूमुलेशन. फॉर्म नंबर 10 हैज टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. ROI लेट है तो एग्जेम्पशन ही चला जाएगा, एंड फॉर्म नंबर 10 लेट है तो एग्जेम्पशन मिलेगा बिकॉज ROI इज ऑन टाइम. 15% एप्लीकेशन वो मिलेगा मगर अक्यूमुलेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. स्पेंड विद इन 5 years, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल इनकम ऑफ द 6th ईयर. तो 6 साल में भी स्पेंड कर सकते हो, या 7th ईयर ऑल्सो बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग और रिटर्न ऑफ इनकम. आपको अपने प्रेजेंट और फ्यूचर का डिफरेंस तो बताना पड़ेगा, बट इंटीमेट डिटेल्स आर नॉट गोइंग टू बी रिक्वायर्ड. अक्यूमुलेटेड इनकम कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस, एक्सेप्ट अगर एओ आपको परमिट करता है या डिसोल्यूशन ईयर में आपको कुछ और करना पड़ेगा. एंड लास्टली, डोनेशन टू अदर ट्रस्ट इज अलाउड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम एक्सक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन, बट ओनली आउट ऑफ करंट ईयर इनकम. अक्यूमुलेशन में से डोनेशन देना अलाउड नहीं है. अगेन डिसोल्यूशन ईयर इज एन एक्सेप्शन, वहां पे तो आपको करना ही पड़ेगा. बिजनेस इनकम का कॉन्सेप्ट हमारा ऑलरेडी खत्म हो गया. तो चैरिटेबल ट्रस्ट का जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज कैपिटल गेन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट. यहां पे सिंपल कैलकुलेशन है, सेल माइनस कॉस्ट. कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन ही नहीं है. अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन ही नहीं है, ऑटोमेटिकली नो इंडेक्सेशन, ऑटोमेटिकली नो स्पेशल रेट, ऑटोमेटिकली नो एग्जेम्पशन अंडर द सीरीज ऑफ सेक्शन 54, ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म कुछ नहीं, नॉर्मल कैपिटल गेन, सेल माइनस कॉस्ट. खाली एक एग्जेम्पशन दिया है, अगर आप अनदर कैपिटल एसेट परचेस करते हो, इफ एंटायर नेट सेल कंसिडरेशन इज इन्वेस्टेड, एंटायर कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्ट. मतलब नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट, और अगर नहीं किया है तो एग्जेम्पशन प्रोपोर्शनेट नहीं होता है. दिस इज द फैक्टर दैट यू हैव टू पे अटेंशन. कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट इज गोइंग टू बी योर एग्जेम्पशन. एंड आपका जो बचा हुआ कैपिटल गेन है वो आपके नेट इनकम में आता है, अगेन एलिजिबल फॉर 15% exemption. Next concept capital gain, next concept after capital gain, withdrawal of exemption. section 13 में कुछ rules दिया है. private religious purposes, particular caste, community, creed, religion with some exceptions like scheduled caste, scheduled tribe, backward class, women, children, senior citizen. trust working for the benefit of specified person, author, founder, trustee, manager, उनके लिए अगर काम कर रहा है, इनके सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर या इनके किसी के रिलेटिव, तो ट्रस्ट विल लूज एग्जेम्पशन विद 2 एक्सेप्शंस. अगर टोटल इज अप टू 1000 रुपीज पर एनम, देन यू विल नॉट लूज एनी एक्सेप्शन. पहला एक्सेप्शन ये था. एंड दूसरा एक्सेप्शन एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट के लिए खाली जो बेनिफिट टेकन है वो सेपरेटली टैक्स होगा, पूरा का पूरा एक्सेप्शन लूज नहीं होगा. कुछ और भी केसेस है, सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट मेंटेन, अगर आपका बिजनेस इंसिडेंटल नहीं है तो और भी केसेस है. लेकिन जो पहला 4 क्राइम है, पहला 4 क्राइम दैट इज प्राइवेट रिलीजियस पर्पसेस, particular caste, community, creed, religion, benefit of specified person and income from non-specified investment other than 11(5), वो भी separately tax होता है. ये 4 केसेस में CIT is empowered, not just आपका exemption जाए, but CIT can cancel your registration also. बाकी के जो
एज फार एज योर अदर क्राइम्स आर कंसर्न, जहां तक आपके अदर क्राइम्स का सवाल है, उसमें आपका एग्जाम्शन तो कैंसिल होगा लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनोनिमस डोनेशन. एज वी आर अवेयर 115 बीबीसी बोलता है अनोनिमस डोनेशन फ्लैट 30%, लेकिन ये फ्लैट 30 किसको किसको अप्लाई नहीं करेगा? होली रिलीजियस ट्रस्ट नॉट एप्लीकेबल एंड पार्टली रिलीजियस पार्टली charitable if the anonymous donation is received for other than education and medical purpose. That means flat 30 किसको अप्लाई करेगा? Wholly charitable and partly वाला if received for education and medical purpose, इनको flat 30. But before applying flat 30 from your anonymous donation, we get the benefit of subtracting one amount. What is that amount? 5% of total donation or 1 lakh, whichever is higher. Mind you, higher. 5% of total donation. ट्रेडिशनली यहाँ पे दो कंट्रोवर्सी हुआ करती थी, अब दोनों का आंसर आ चुका है एज पर आईसीआई सजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम यहाँ पे टोटल डोनेशन ले रहे हैं तो वी विल बी टेकिंग ऑब्वियसली नॉर्मल डोनेशन, अनोनिमस डोनेशन एंड वी विल ऑल्सो बी टेकिंग कॉर्पस डोनेशन बिकॉज आईसीआई अपने सजेस्टेड में ऐसा कर रहे हैं. सो वी विल टेक 5% ऑफ टोटल डोनेशन. टोटल के अंदर एक्चुअल, दैट इज नॉर्मल, अनोनिमस, कॉर्पस, तीनों का टोटल 5% और 1 लाख विचएवर इज हायर. एंड ये जो हम लोग अनोनिमस में से सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस के ऊपर 30% लगा रहे हैं, ये इनकम जो हमारी माइनस हो रही है, दिस विल बी एडेड इन अवर अदर इनकम. द अमाउंट दैट वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम अवर अनोनिमस डोनेशन, दैट विल बी एडेड इन अवर अदर इनकम. हिस्टोरिकली एंड एज पर लॉ वो ऐड हो रहा था. इनफैक्ट आईसीआई भी ऑल्टरनेट सजेस्टेड आंसर दे रहा था दैट यू कैन एड इट एट द बॉटम फाइनल आंसर के अंदर, बट नाउ दे आर गिविंग एमसीक्यू का आंसर्स बाय एडिंग किधर? नेट इनकम में. जो अनोनिमस में से माइनस हो रही है वो नेट इनकम में ऐड हो रही है. नेट इनकम में मतलब उस पर 15% भी मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा, अक्यूमुलेशन मिलेगा एंड देन इट विल गो टू नॉर्मल रेट्स. एक्चुअली लॉजिकली स्पीकिंग फ्लैट 30 से निकल के डायरेक्ट नॉर्मल रेट्स लगाओ. 15% देने का क्या जरूरत है? तो अनोनिमस डोनेशन है. बट आईसीआई भी अपने सब्जेक्टिव आंसर्स में दोनों ऑल्टरनेटिव देता था, लेकिन अब उन्होंने क्या किया? हमारे ऑब्जेक्टिव के आंसर के अंदर उन्होंने ऊपर ऐड कर दिया और ऑब्जेक्टिव का सजेस्टेड आंसर ऊपर ऐड करके जो आ रहा है वो है. सो वी हैव गॉट नो चॉइस. 5% ऑफ टोटल डोनेशन इंक्लूडिंग कॉर्पस और 1 लाख विचएवर इज हायर. अनोनिमस में से माइनस करके 30% लगाओ एंड जो अमाउंट यहां से माइनस हो रही है उसको आप अदर इनकम में एकदम टॉप पे नेट इनकम में ऐड करके फिर अपना कंप्यूटेशन स्टार्ट करो. 15% एप्लीकेशन, अक्यूमुलेशन एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर total income. And last concept, exit tax. Whenever a trust becomes non-charitable, तो exit tax भरना पड़ेगा on accreted income. 30% plus 12% plus 4%. 34.608% tax is going to be attracted. 30 plus 12 plus, oh no, not 34.608, 34.944. वो 3% के सेस में 34.608 आता था. 34.944. That is going to be the applicable rate of tax on accreted income. Accreted income का definition asset minus liability. Asset के अंदर we will exclude 3. Exemption not taken, 10(1) that is agriculture and dissolution वाले केसेस में we will exclude जो एसेट टाइम लिमिट के अंदर ट्रांसफर हो गया. तो जो ट्रांसफर नहीं हुआ खाली उसके ऊपर एग्जिट टैक्स लगेगा. व्हाट आर द केसेस? केस 1, ट्रस्ट इज मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट्स नॉट अप्लाइंग फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, देन मॉडिफिकेशन की डेट के ऊपर accreted इनकम कैलकुलेट होगी. सेकेंड, अप्लाइंग बट सीआईटी इज डिनाइंग, तो अगेन मॉडिफिकेशन के डेट के ऊपर एग्जिट टैक्स कैलकुलेट, ये accreted इनकम एंड ऑब्वियसली एग्जिट टैक्स कैलकुलेट होगा. कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ तो कैंसलेशन वाले डेट के दिन वी विल बी कैलकुलेटिंग अवर कैंसलेशन के डेट के दिन वी विल बी चेकिंग द accreted इनकम. मर्जर विद नॉन चैरिटेबल एंटिटी तो मर्जर वाली डेट के अंदर एंड डिसोल्यूशन वाले केस में डिसोल्यूशन वाले डेट के अंदर. मतलब पेमेंट हमको बाद में करना है लेकिन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑन द डिसोल्यूशन डेट एंड वी हैव टू पे विद इन 14 days. पहले केस में 14 days फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर. सेकंड केस में वेर सीआईटी इज डिनाइंग एंड थर्ड केस में वेर इज कैंसलिंग. हमको देखना पड़ेगा अपील किया कि नहीं किया. अगर अपील किया है तो अपील हारने के बाद कॉपी आने के 14 days के अंदर, और अगर अपील नहीं किया है तो टाइम लिमिट ऑफ एक्सपायरी ऑफ अपील के 14 days के अंदर यू विल हैव टू पे योर एग्जिट टैक्स. लेकिन आपको वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो वाली डेट की लेनी पड़ेगी, मॉडिफिकेशन या कैंसलेशन. मर्जर वाला केस सबसे इजी है. मर्जर के डेट का accreted इनकम और मर्जर के डेट से 14 days. एंड डिसोल्यूशन वाले केस में accreted इनकम कैलकुलेशन और डिसोल्यूशन डेट, मगर 14 days का कैलकुलेशन विल बी फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, 12 months फ्रॉम दी एंड जो जिस पीरियड के अंदर यू कैन ट्रांसफर योर एसेट टू अदर ट्रस्ट, क्योंकि जितने एसेट ट्रांसफर हो गए उसके ऊपर नहीं लगाना है, लेकिन वैल्यूएशन वी विल टेक ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. दैट वाज एग्जिट टैक्स. दैट वाज आवर चैप्टर कॉल्ड चैरिटेबल ट्रस्ट. दीज वर 2 बिग चैप्टर्स, पार्टनरशिप एंड चैरिटेबल. अब कुछ छोटे चैप्टर. फर्स्ट, असेसमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. 6 कंडीशन दिए हैं. व्हाट आर द 6 कंडीशन? रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गेट देम ऑडिटेड, फाइल योर ROI ऑन
फाइल योर ROI ऑन टाइम। अगर आपको 2000 से ज्यादा का डोनेशन मिल रहा है, डोनेशन एक्सीडिंग 2000, इट हैज टू बी अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड और इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और 20,000 से ऊपर के डोनेशन में यू विल हैव टू मेंटेन आइडेंटिटी ऑफ द डोनर। 20,000 से ऊपर के अंदर यू विल हैव टू मेंटेन आइडेंटिटी ऑफ द डोनर, बट नॉट इन केस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। अगर ये 6 कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होती है तो व्हाट इनकम्स विल बी एग्जेम्प्ट? हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट, IFOS एग्जेम्प्ट, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट एंड वॉलंटरी डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट। सैलरी हो नहीं सकता है एंड PGBP ऑलवेज टैक्सेबल। दैट मीन्स इफ यू डिससैटिस्फाई एनी कंडीशन, everything will be taxable, and if you satisfy all conditions, PGBP will be taxable. That is a very small chapter, assessment of political party. Likewise, and again a very small, another very small chapter, that is assessment of इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसका काम है खाली पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना, टेक मनी फ्रॉम डोनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू पॉलिटिकल पार्टीज। 3 कंडीशन दिया हुआ है, अप्रूव बाय CBDT, फंक्शन अकॉर्डिंग टू रूल्स, एंड तीसरा एटलीस्ट 95%, मिनिमम 95% ऑफ योर करंट ईयर इनकम प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड सरप्लस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा कर लोगे तो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की इनकम तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन अदर इनकम कंडीशन सेटिस्फाई करो कि मत करो, अदर इनकम ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी taxable. That was our chapter, assessment of electoral trust. This takes us to a very important chapter, that is minimum alternate tax. Minimum alternate tax, that is MAT. वैसे तो ऑर्डिनेंस के अंदर जो अमेंडमेंट्स आए, अमेंडमेंट्स आपको पता है बिकॉज ये रिवीजन लेक्चर है, आपने पढ़ लिया। अगर अमेंडमेंट नहीं पढ़ा है तो अमेंडमेंट डिटेल में पढ़ने के लिए अलग से अमेंडमेंट का लेक्चर है। यहाँ पे वो वाले अमेंडमेंट आपको रिवाइज कराए जाएंगे, मगर इतना डिटेल के अंदर नहीं जितना डिटेल में फुल कोर्स में या अमेंडमेंट के लेक्चर के अंदर होता है। बाय द वे, जो बच्चा फुल कोर्स ले लेता है उसको और कुछ लेने का जरूरत नहीं है एक्चुअली, एवरीथिंग गेट्स कवर्ड, क्वेश्चन आंसर, अमेंडमेंट, एवरीथिंग। खाली रिवीजन, फुल कोर्स वाले बच्चे को खाली रिवीजन का लेक्चर ही एडवाइस है, बाकी सब कवर हो ही जाता है। रिवीजन वाले लेक्चर के अंदर अमेंडमेंट डिटेल में नहीं होगा, अमेंडमेंट वाले लेक्चर के अंदर रिवीजन डिटेल, सबका एक पर्पस है। क्वेश्चन आंसर के अंदर वी डू ओनली क्वेश्चन आंसर। मल्टीपल कोर्सेज आर डिजाइन इसी पर्पस के लिए। हमने तो लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए 2 लैंग्वेज में भी डिजाइन किया है। हम तो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के लिए चैप्टर वाइज लेक्चर भी देते हैं। आप बोल दो आपने असेसमेंट प्रोसीजर कहीं पे पढ़ा है, आपको नहीं जम रहा है, हम आपको वो दे देंगे। PGBP नहीं जम रहा है, वो दे देंगे। यू वांट एनी पर्टिकुलर चैप्टर, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है कि कोई ऐसा सेक्शन है जो आपको लगता है कि मैं TDS में करूंगा, लेकिन मैंने वो सेक्शन PGBP में करा है। That risk you have to take. Then after taking that chapter, we can't do anything. But coming back to the point, MAT के अंदर heavy amendments have taken place, with which it is likely that over 90% companies of our country will exit the purview of minimum alternate tax. लेकिन फिर भी आज भी कुछ कंपनी मैट के अंदर कवर्ड रहेगी। 2 टाइप की कंपनी, जिनको वो टैक्स बेनिफिट जो 115BAA BAB जो नए वाले सेक्शन आए हैं फॉर कंसेशनल टैक्स रेट्स, और जिसकी वजह से मैट भी अप्लाई नहीं करेगा, जिसको वो वाले टैक्स रेट्स वो लेने के लिए जो टैक्स बेनिफिट छोड़ना पड़ता है, अगर वो टैक्स बेनिफिट लेने का मन है या उससे रिलेटेड कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बेनिफिट्स है, हम नए टैक्स रेजिम में वो वाले बेनिफिट्स एग्जॉस्ट करके जाएंगे, तो वो लोग, और जिसका अक्यूमुलेटेड मैट क्रेडिट है, बिकॉज वंस यू गो टू द न्यू रेजिम मैट विल नॉट बी एप्लीकेबल, मैट नॉट एप्लीकेबल, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट लैप्स हो जाएगा, ऑब्वियसली लैप्स हो जाएगा। तो CBDT ने खुद ने ही सर्कुलर निकाल के सजेस्ट किया कि जिसका ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट लेने का मन है पहले ले लो और उसके बाद में नए वाले टैक्स रेजिम में शिफ्ट करना। दैट मींस इवन टुडे देयर विल बी सम कंपनीज व्हिच विल कंटिन्यू इन द ओल्ड टैक्स रेजिम, और उसी रेजिम के अंदर मैट लगेगा, बिकॉज 115JB बोलता है मैट विल बी एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, चाहे इंडियन हो, फॉरेन हो, डोमेस्टिक, नॉन डोमेस्टिक, पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, एवरी कंपनी, 5 को छोड़ के 5। कौन सा? एग्जिस्टिंग 4 क्या थे? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, फॉरेन कंपनी DTAA, नो PE इन इंडिया, फॉरेन कंपनी नो DTAA, नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर एनी लॉ ऑफ इंडिया। 4th 44B, BB, BBB, BBA का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अगर आपने लिया है तो ओनली एंड ओनली इफ यू हैव टेकन दैट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। एंड लास्ट, ये जो नए 2 सेक्शन आए ऑर्डिनेंस के अंदर फॉर रिलैक्सेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन, 115BAA विच हैज गिवन नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का या ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज BAB इज ओनली फॉर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, तो एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए BAA 22%, कंपल्सरी सरचार्ज 10% एंड कंपल्सरी सेस 4%, कंपल्सरी सरचार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। देन ऑल्सो द इफेक्टिव टैक्स रेट विल बी 25.168 ओनली। जो आपका नॉर्मल टैक्स करते हैं 30 पे या 25 पे, वो सेस ऐड करके भी, देखो 30 तो पहले से ज्यादा है, 25 आपको 25.168 से तो कम लग रहा है, लेकिन 25 बेसिक है एंड 25.168 इज ऑल इंक्लूसिव। 25 में 4% सेस ऐड करोगे तो 26 बन जाएगा, और सरचार्ज अगर आएगा तब तो और बढ़ जाएगा। भले 115BAA में कंपल्सरी सरचार्ज है तो भी उसका इफेक्टिव टैक्स रेट आफ्टर सरचार्ज एंड सेस ऑलरेडी पहली बात तो लोअर रहेगा, और दूसरा एडवांटेज, वंस यू टेक 115BAB, MAT is now not going to be
एप्लीकेबल। मतलब नॉर्मल इनकम नॉर्मल टैक्स सिर्फ आपको करना है। इन माइनस पॉइंट यह है कि आपको एक लिस्ट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स छोड़ने पड़ेंगे। तो अगर आप वो टैक्स बेनिफिट छोड़ने के लिए रेडी हो, इफ यू आर विलिंग टू लीव दोस टैक्स बेनिफिट्स, वी आर गोइंग टू गिव यू अ कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स ऑल्सो, एंड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल। तो ये तो सभी कंपनीज के लिए हो गया। इसके लिए तो 3 ही कंडीशन दिया, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सब कंपनी सेटिस्फाई करेगी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जिनको पहले हम बेटर टैक्स रेट देते थे, वो बोलते सर हमारा क्या, उनके लिए नया सेक्शन बनाया 115BAB फॉर न्यूली सेटअप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। कंडीशंस हम थोड़ी देर में देखेंगे। उनके लिए वी आर सेइंग द टैक्स रेट विल बी 15%, कंपल्सरी सरचार्ज इधर भी 10 और 10% सरचार्ज, 4% सेस, तो भी इफेक्टिव टैक्स रेट 17.16, which is again drastically low compared to our existing tax rates, and plus the advantage MAT not applicable। तो अभी के लिए मैं 115BAA and BAB की सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं। इन दोनों को एक तो लो, वेरी लो रेट ऑफ टैक्स 25.168 ऑल इंक्लूसिव इन 115BAA एंड 17.16 ऑल इंक्लूसिव इन BAB। भले इनका कंपल्सरी सरचार्ज है 10 एंड कंपल्सरी सेस है 4, सेस तो वैसे ही कंपल्सरी होता है, सरचार्ज इज कंपल्सरी 10, देन ऑल्सो इफेक्टिव टैक्स रेट इज लोअर और मेन मैट नॉट एप्लीकेबल। तो मैट नॉट एप्लीकेबल की लिस्ट में अब ये 5वां ऐड हो गया। एनी कंपनी ऑप्टिंग, माइंड यू, ऑप्टिंग फॉर BAA एंड BAB, तो मैट नहीं लगेगा। एंड बिकॉज BAA एंड BAB के टैक्स रेट्स इतना कम है, तो मोस्ट कंपनीज विल ऑप्ट, प्लस द एडवांटेज मैट नहीं लगेगा। मान लो फाइनेंशियली टैक्स अगर थोड़ा ज्यादा भी आ रहा है, लेकिन मैट के लिए बुक प्रॉफिट आपको कंप्यूट कराना पड़ेगा, CA रिपोर्ट कंपलसरी, वो सब से आपको बचने के लिए, वो सब से आपका कॉस्ट भी तो लगेगा, वो भी तो आपके कैलकुलेशन फैक्टर के अंदर आएगा। सो मोस्ट कंपनीज विल बी गोइंग इन द न्यू रेजिम BAA BAB, और इसीलिए मैट अप्लाई ही नहीं करेगा। लेकिन कोई कोई कंपनी को अगर अपने डिडक्शंस लेने हैं, दे विल कंटिन्यू इन द ओल्ड रेजिम, देन नाउ मैट विल बी एप्लीकेबल। वी विल बी कैलकुलेटिंग नॉर्मल इनकम नॉर्मल टैक्स, बुक प्रॉफिट एंड मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और ऑर्डिनेंस ने मैट के रेट को भी चेंज कर दिया, 15% मैट हो गया इंस्टेड ऑफ 18.5। सो मैट का रेट ऑल्सो इज नाउ रिड्यूस्ड फ्रॉम द रेट ऑफ 18.5 to 15% by way of the ordinance। obviously surcharge cess आएगा, लेकिन IFSC का 9% as it is continue रहेगा। so company will have to do 4 calculations: normal income normal tax, book profit, minimum alternate tax at 15% of book profit, and normal tax or MAT, whichever is higher, will be payable for those companies which are taking the old tax regime. MAT is going to be applicable. Normal income calculation as per our volume 3 heads of income के जो chapters है वो, how are we going to calculate our normal tax? normal tax कैसे calculate होगा? how are we going to calculate normal tax? how are we going to calculate normal tax? First, basic tax domestic company flat rate 30%। लेकिन 2 साल पहले अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ था, ये सिस्टम अभी है ना बहुत सालों से चल रहा है। यू हैव टू सी टर्नओवर नॉट ऑफ करंट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, यू हैव टू सी 2 years अगो। पहले शुरू हुआ 16-17 से, आपको 14-15 का टर्नओवर देखना था, 5 करोड़ का लिमिट था। फिर 17-18 में आपको 15-16 का टर्नओवर देखना था, 50 करोड़ का लिमिट हो गया। लास्ट ईयर 18-19 में आपको 16-17 का टर्नओवर देखना था, तो 250 करोड़ का लिमिट था। और अमेंडमेंट क्या है, अब हम 19-20 में आ गए, तो टर्नओवर हमको 17-18 का देखना है, एंड द टर्नओवर लिमिट इज 400 crore। So if your turnover in 17-18 was up to rupees 400 crore, तो 25%, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 25। हाँ, लेकिन सेस के साथ 26 होगा, और BAA के अंदर वो बहुत कम है, बहुत कम है। आर यू फॉलोइंग? एंड न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का तो और भी कम है। एंड प्लस मैट ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। रिमेंबर, जो नॉर्मल टैक्स में जाता है उसको मैट अप्लाई करेगा, उसको मैट अप्लाई करेगा। आर वी क्लियर? सो 30%, लेकिन अगर आपका 2 साल पहले का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो 25%। दीज आर नॉर्मल टैक्स रेट्स, नॉर्मल टैक्स रेट्स। इसमें सरचार्ज कब आएगा? एनटीटी है अप टू 1 करोड़ नो सरचार्ज, माइंड यू। फर्म्स एंड कंपनीज 1 करोड़ तक नो सरचार्ज। 1 करोड़ के बाद डोमेस्टिक कंपनी का 7% है, 15 भी नहीं, 12 भी नहीं, कुछ नहीं। एंड 10 करोड़ के बाद में इट इज गोइंग टू बी 12%, नो अमेंडमेंट। अमेंडमेंट ऑफ 25 and 37 has taken place only in individual HUF, AOP, BOI, AJP। इसलिए तो बोला था वो FII के लिए ओनली इफ रजिस्टर्ड एज AOP, जो ऑर्डिनेंस में बोला दैट नए वाले सरचार्ज के लिए ऑर्डिनेंस विल नॉट बी एप्लीकेबल अगर सिर्फ कैपिटल गेन की वजह से क्रॉस कर रहा है, बिकॉज इफ FII इज AOP, इफ FII इज कंपनी, तो कंपनी के सरचार्ज रेट्स में कोई चेंज नहीं है। डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, नॉन डोमेस्टिक की बाद में करेंगे। 0 to 1 करोड़ नो सरचार्ज, मोर देन 1 करोड़ से 10 करोड़ 7%, मोर देन 10 करोड़ 12%, HEC 4% ऑलवेज। लेकिन अब नए टैक्स रेजिम की बात करते हैं। 115BAA 22 प्लस कंपल्सरी 10 प्लस 4 25.168, वो नॉर्मल वाला 25 विथ सेस ऑल्सो भी ज्यादा रहेगा, और सरचार्ज लग गया तो और भी ज्यादा रहेगा, और उसमें मैट भी लगेगा, इसमें मैट नहीं लगेगा। क्या स्टूपिड सी कंडीशन है। डोमेस्टिक कंपनी
यू हैव टू डिसाइड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। एक बार आपने ये ले लिया फिर आप छोड़ नहीं सकते हो। दिस इज वन वे प्रोसेस। और जो एक पुराना सेक्शन था 115BA फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उसमें भी जो कंपनीज आती थी, इफ दे वांट टू कम हियर दे कैन कम हियर, वहां पे ऐसा लिखा था BA ले लिया तो छोड़ नहीं सकते, तो वहां पे भी अमेंडमेंट किया दैट अगर आपको BAA में जाना है तो आप जा सकते हो। BAB इज ओनली फॉर न्यू कंपनीज, तो ओल्ड कंपनीज को BAA में ही आना पड़ेगा इवन इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो डोमेस्टिक कंपनी डिसाइड बिफोर रिटर्न फाइलिंग, एक बार ले लिया तो चेंज नहीं कर सकते। एंड आपको एक लिस्ट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स छोड़ना पड़ेगा, बस इतना सा। कौन सा टैक्स बेनिफिट्स? 10AA एडिशनल डेप्रिसिएशन, 32AD डिडक्शन, साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन, 35CCC CCD, 35AD इनकम रिलेटेड चैप्टर 6A डिडक्शन, एक्सेप्ट 80JJAA वो जो जॉब देने का है वो ले सकते हो, बाकी सब आपको छोड़ना पड़ेगा। यू लीव ऑल योर टैक्स बेनिफिट्स, लीव ऑल योर टैक्स बेनिफिट्स। इनफैक्ट इससे रिलेटेड कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो वो भी लैप्स होगा, सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन यू कैन टेक, ऑल दिस टैक्स बेनिफिट्स यू विल लीव, एंड अगर इनसे रिलेटेड कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो दैट ऑल्सो यू लीव। तो CBDT ने सजेशन दिया, देखो बेटा अगर तुम्हारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो एक काम करो, रिमेन इन द ओल्ड टैक्स रेजिम, उनको एग्जॉस्ट कर लो, एग्जॉस्ट करके नए वाले में जाना, तुमको कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स भी मिलेगा, मैट भी नहीं लगेगा, और नए वाले रेजिम में जाने के लिए कोई स्टार्ट डेट नहीं है, लेकिन एक बार घुस गए देन यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। तो पहले अपने सारे ये सब खत्म करो, उसके बाद में जाओ। डोमेस्टिक कंपनी लीव द टैक्स बेनिफिट्स डिसाइड बिफोर रिटर्न फाइलिंग, एक बार ले लिया तो छोड़ नहीं सकता। इतनी सी कंडीशन, वर्चुअली ओवर 90% कंपनीज विल गो इन दिस, खाली वो टैक्स बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, और जिसको वो लेना है दे विल कंटिन्यू इन द ओल्ड रेजिम, लेकिन नए वाले में रेट ऑफ टैक्स भी कम है और मैट भी नहीं लगेगा। बट एट दिस स्टेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर रेजिंग एन ऑब्जेक्शन, तो फिर सर हमारा क्या बेनिफिट? पहले हमारे लिए अलग से बेनिफिट, तो तुम्हारे लिए बनाएंगे 115BAB, डोमेस्टिक कंपनी only manufacturing no other business incorporated on or after 1st October 19, वो ऑर्डिनेंस में आया, and start manufacturing up to 31st March 2023. It should not be splitting up or reconstruction of existing business। देखो मैं पहले से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, वो कंपनी को डिसॉल्व करके नया कंपनी वही बिजनेस चालू करूंगा, देन इट इज नॉट अ न्यू कंपनी, है तो खाली वो 15% प्लस सरचार्ज सेस 17.16 के फायदा उठाने के लिए लिया है, नहीं स्प्लिटिंग अप रिकंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा। SEZ में भी हमने ये कंडीशन पढ़ा है, सेकंड हैंड लोकल मैक्सिमम 20%, SEZ में भी ये कंडीशन पढ़ा है। अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदा है, इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ होटल और कन्वेंशन सेंटर बिफोर दिस, ये एक कंडीशन है। और फिर एक बार आपको वो सारे टैक्स बेनिफिट 32AD एडिशनल डेप्रिसिएशन, 35AD, 35CCC CCD, you leave all the tax benefits and pay tax as per the new regime, ridiculously low rate of tax, plus आपको मैट भी अप्लाई नहीं करेगा। एंड इफ यू वांट टू टेक दोस टैक्स बेनिफिट्स यू कैन कंटिन्यू इन द ओल्ड रेजिम, लेकिन एक बार आप 115BAB में घुस गए, वंस अगेन यू कैन नॉट चेंज। मतलब दिस इज वन वे ट्रैफिक, नए वाले में घुस गए, दिस इज लाइक CA फाइनल, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स, न्यू कोर्स में जाके वापस ओल्ड कोर्स में नहीं आ सकते हो, ओल्ड वाले को कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कर सकते हो। आई थिंक November 20 इज योर लास्ट एग्जाम एज पर ICAI, भरोसा नहीं, बाद में बोल देगा हमको नहीं जम रहा है, अभी न्यू ही लेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं। अब तक तो बोला है कि November 20 तक चलेगा, लेकिन आप न्यू में जाके वापस नहीं आ सकते हो। ओल्ड से न्यू में मन हुआ, अभी मन हो रहा है यार छोड़ना, आई लाइक इंटरनेशनल टैक्स, दिस इज अ गुड प्रोफेसर, इसके लेक्चर ले लेता हूं तो मेरा एक पेपर का लोड कम हो जाएगा। आप ओल्ड से न्यू में जब मन है तब जा सकते हो, लेकिन न्यू से ओल्ड में नहीं आ सकते हो। सेम थिंग इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। एंड प्लस रिमेंबर BAA का एडवांटेज, मैट भी नहीं लगेगा। दीज वर नॉर्मल टैक्स रेट्स फॉर डोमेस्टिक कंपनी। हम नॉन डोमेस्टिक कंपनी की बात करते हैं, NTTI उसको भी करना है, NTTI के ऊपर फ्लैट 40, कोई ऑर्डिनेंस नहीं कुछ नहीं, एक ही रेट है बेसिक टैक्स फॉरेन कंपनीज का, फ्लैट रेट ऑफ 40%। फॉरेन कंपनीज विल बी पेइंग टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ 40%। सरचार्ज इनको भी 1 करोड़ के बाद, 1 करोड़ तक नथिंग, 1 करोड़ के बाद 2%, 10 करोड़ के बाद 5%। सो 0, 7, 12 विल नाउ चेंज टू 0, 2 एंड 5। कोई अमेंडमेंट यहां पे 25-37 वाला नहीं आया। HEC विल बी 4% ऑलवेज। लेट्स गो टू द अदर कैलकुलेशन। ये तो नॉर्मल इनकम नॉर्मल टैक्स था, नाउ वी हैव टू गो टू बुक प्रॉफिट, और बुक प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होगा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मैट विल बी कैलकुलेटेड। अमेंडमेंट आ गया, 18.5 इज रिड्यूस्ड, ऑर्डिनेंस में आया था 15%, मगर IFSC में 9%। यहां पे भी सरचार्ज के रेट्स डोमेस्टिक के लिए अप टू 1 करोड़ 0, 1 से 10 के बीच में 7, 10 के बाद 12, नॉन डोमेस्टिक के लिए 0, 5, 0 to 5, so 0, 7, 12, 0 to 5 rates are same, but you have to see the amount of book profit. Under MAT the book profit will be considered as your total income and HEC will be attracted. Normal tax or MAT, whichever is
higher is going to become your liability. Book profit calculation के 29 steps है, as you are aware. You have to learn those 29 steps. Start with net profit as per profit and loss account. Add side पे 15 adjustment जो आपने wrong debits किया है या कुछ incomes आपको credit करनी चाहिए वो आपने नहीं किया. And less side के ऊपर wrong credits अगर कुछ है तो we will be adjusting. Add side 15, less side 14. इसके अंदर खाली वो थ्रू करना है, आपको रीड करना है. एक अमेंडमेंट आया वो आपको बता देता हूं. जो लेस साइड के ऊपर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वी गिव लोअर ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस, विच एवर इज लोअर हम लोग देते हैं. इसके अंदर एक कंपनी को टोटल दोनों मिलता है, मतलब लोअर नहीं दोनों मिलेगा. विच कंपनी अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी एंड द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड. अब इसके अंदर एक और कंपनी आ जाएगी. सो फॉर ऑल कंपनीज इट इज विच एवर इज लोअर. इंसॉल्वेंसी के लिए विच एवर इज लोअर नहीं दोनों. अब दोनों में एक और आएगी. एनी कंपनी जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड किया गया बाय द एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, या फिर नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए एज पर कंपनी लॉ सेक्शन 241 242 ऑफ कंपनी लॉ में बीओडी कैन बी सस्पेंडेड एंड न्यू बीओडी कैन बी अपॉइंटेड. अगर सस्पेंशन हुआ है एंड न्यू बीओडी हैज बीन अपॉइंटेड तो वो कंपनी उसकी सब्सिडियरी कंपनी एंड सब्सिडियरी की सब्सिडियरी, सब सब्सिडियरी या चेन होल्डिंग बोल सकते हो, कंपनी सब्सिडियरी एंड सब्सिडियरी की सब्सिडियरी, उनको मिलेगा दोनों बिजनेस लॉस एंड यूएडी का टोटल. सो इंसॉल्वेंसी के साथ साथ अब बीओडी सस्पेंडेड वाली कंपनी, उसकी सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी की सब्सिडियरी, इन सबको मिलेगा दोनों का टोटल. एंड ऑल अदर कंपनीज ऑब्वियसली बिजनेस लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आउट ऑफ द टू विच एवर इज लोअर. दैट वाज योर one small amendment in your book profit calculation. बाकी 15-14 as it is, you will have to go through it. and नीचे कुछ case laws and कुछ points to be noted, जैसे chapter 6 से नहीं मिलता है, CA का रिपोर्ट कंपलसरी है, कुछ points to be noted आपको go through करना है. कुछ case laws, Rolta India, Karnataka Small Scale Industries Development Corporation, Apollo Tyres, there are some important case laws, you should go through them. हालांकि I really believe that मैथ शायद अब थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो जाएगा आईसीआई के एग्जाम्स में, बिकॉज विद द न्यू टैक्सेशन रेजिम ओवर 90% कंपनीज ऑफ अवर कंट्री आर एक्सपेक्टेड टू गेट आउट ऑफ द मैट रेजिम. वो मैट से बच जाएंगे. और लास्ट में मैट क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट है. इफ नॉर्मल टैक्स, इफ मैट इज हायर देन क्रेडिट अक्रू होगा, और फ्यूचर में जब भी नॉर्मल टैक्स हायर होगा तो क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो मैट के जितना डिफरेंस. बट ऑब्वियसली इन्होंने वहां पे भी प्रोविजन बोला कि अगर अब आप नए वाले रेजिम में चले जाते हो, मैट अप्लाई नहीं करता है तो क्रेडिट यूटिलाइज कैसे करोगे, मैट क्रेडिट लैप्स. तो सीबीडीटी ने यहां पे भी ऑप्शन दिया, मैट क्रेडिट को खत्म करो फिर नए वाले में टैक्स रेजिम में जाओ, बिकॉज एंट्री के लिए देयर इज नो स्टार्ट डेट. एक बार घुस गए तो बाहर नहीं आ सकते, बट देयर इज नो स्टार्ट डेट टू गो टू द न्यू टैक्स रेजिम. That's minimum alternate tax. If we talk about alternate minimum tax 115JC, every assessee other than company, कंपनी के लिए 115JB है, उसके अलावा जितने भी assessees है उनको भी करना पड़ेगा. नॉर्मल इनकम, नॉर्मल टैक्स. नॉर्मल टैक्स हम इंट्रोडक्शन में फॉर्म्स में सीख लिया. दे विल हैव टू कैलकुलेट एडजस्टेड टोटल इनकम, एंड एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर 18.5% आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स. तो यहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं आया. इसमें जो सरचार्ज ऐड होगा दैट विल डिपेंड फ्रॉम असेसी टू असेसी. सो फर्म्स का सिर्फ 12% का एक ही सरचार्ज है 1 करोड़ के बाद, इंडिविजुअल्स का 50 के बाद 10%, देन 15 आफ्टर 1 करोड़. अमेंडमेंट भी लगेगा आफ्टर 2 करोड़ 25, आफ्टर 5 करोड़ 37, बट ऑल दिस विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, बिकॉज हियर दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर टोटल इनकम. एंड ऑब्वियसली नॉर्मल टैक्स और एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज हायर विल बिकम नॉर्मल टैक्स, और एएमटी विच एवर इज हायर, एएमटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम. मेन कैलकुलेशन इज एडजस्टेड टोटल इनकम, जैसे वहां पे बुक प्रॉफिट है. ये 3 ही स्टेप है तो जल्दी से रिवाइज करा देता हूं. स्टार्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी नेट टैक्सेबल टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन, कोई बुक के हिसाब से नहीं, इनकम टैक्स. और 3 चीज ऐड करनी जो हमने ऊपर डिडक्शन लिया, 10AA डिडक्शन, 35AD डिडक्शन, नेट ऑफ द डेप्रिसिएशन फोरगोन. इफ वी हैव फोरगोन एनी डेप्रिसिएशन तो नेट ऑफ दैट, एंड इनकम रिलेटेड चैप्टर 6A डिडक्शन एक्सक्लूडिंग 80P. ये 3 को ऐड करो, एडजस्टेड टोटल इनकम मिला, उसके ऊपर एएमटी कैलकुलेट करो, और इस अमाउंट के हिसाब से, एटीआई के अमाउंट के हिसाब से सरचार्ज डिसाइड होगा. सेस तो हमेशा आता ही है, नॉर्मल टैक्स और एएमटी विच एवर इज हायर. एएमटी इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी, वो तो हम स्टार्टिंग में ही देख लिए. उसके अलावा एनी पर्सन हु हैज नॉट टेकन दीज 3 डिडक्शंस, तो एएमटी लगाने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एनटीटीआई एंड एटीआई सेम रहेगा. एंड इंडिविजुअल EHUF, EOP, BOI, AJP, if your adjusted total income is up to rupees 20 lakh, then again alternate minimum tax is not going to be applicable. If your adjusted total income is up to rupees 20 lakh, then alternate minimum tax will not be applicable. कुछ याद आया? यहाँ पे भी सीए का रिपोर्ट लगता है और यहाँ पे भी एएमटी क्रेडिट सेम रूल से कैरी फॉरवर्ड होता है. एंड मैट में, एएमटी में, दोनों में वो एक लाइन डाला है, एक्सेस मैट क्रेडिट ड्यू टू डिफरेंस इन फॉरेन टैक्स क्रेडिट विल
लैप्स। अगर आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट का डिफरेंस है, एक जगह पे नॉर्मल रेट्स, एक जगह पे स्पेशल रेट्स, टेक्स्ट बुक में इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया है, फुल कोर्स में हमने किया भी है, खाली कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं। देन एक्सेस मैट क्रेडिट ड्यू टू डिफरेंस इन फॉरेन टैक्स क्रेडिट विल लैप्स एंड इवन AMT, बोथ प्लेसेस सेम रूल। यहां पे हमारा खत्म होता है सीरीज ऑफ अवर फर्स्ट 16 चैप्टर्स इन अवर पोर्शन। हमारे पहले जो 16 चैप्टर्स वॉल्यूम 1 जिसको मैं बोलता हूं वो खत्म होता है, मगर वी विल नॉट स्टॉप, कंटिन्यूइंग इन द ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट बुक वी विल गो फर्दर। हमारा अब आता है दैट चंक कॉल्ड असेसमेंट रिलेटेड टॉपिक्स, एवरीथिंग रिलेटेड विद ईच अदर, IT अथॉरिटी, सर्च एंड सीजर, असेसमेंट, अपील्स, रिवीजन। एटलीस्ट ये 5 तो एक मुट्ठी में ज्वाइंट में बन के रहता है। सो वेरी क्विकली वी विल रिवाइज IT अथॉरिटी सेक्शन 116, हम वहां हायरार्की दिया है, हमको हायरार्की दिया है, सीनियर मोस्ट CCIT, देन CIT, देन वी हैव एडिशनल ज्वाइंट डेप्यूटी असिस्टेंट, ITO, TRO, इंस्पेक्टर, दैट इज द हायरार्की। अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है अप टू ज्वाइंट, नीचे का हम लोग डेलीगेट कर देगा। CBDT विल कंट्रोल द एंटायर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विद इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क। सबसे मेन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 119 पावर्स ऑफ CBDT, 2 पावर अलाउड नहीं है, इंटरफियरिंग विद CIT अपील्स व्हेन ही इज डूइंग हिज अपील वर्क, एंड डिस्पोजिंग ऑफ, डायरेक्टिंग एन AO टू डिस्पोज ऑफ अ पर्टिकुलर केस इन अ पर्टिकुलर मैनर। बाकी सब पावर अवेलेबल है। व्हाट पावर अवेलेबल? रिलैक्स प्रोविजंस ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस। सेकंड, admit belated claim of refund, rebate, relief, carry forward of loss, and third, relax provisions of chapter 4 that is heads of income and chapter 6 that is deduction. CBDT circular are binding on all IT authorities, they cannot protest, लेकिन assessee protest कर सकता है by way of filing a writ petition under article 226 of the constitution of India at the high court। अगर favor of assessee है तो वो by default valid हो जाएगा, क्योंकि ऑफिसर प्रोटेस्ट कर नहीं सकते और assessee करेगा ही नहीं, एंड अगेंस्ट assessee है तो assessee उसको wrong करवाएगा by way of writ petition। CBDT circular cannot contradict plain language of the law और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, लेकिन वो भी अगर एसएससी के फेवर में तो कुछ भी करो चलेगा, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू प्रोटेस्ट। एंड CBDT सर्कुलर इज बाइंडिंग ओनली ऑन IT अथॉरिटीज, एसएससी पे तो नहीं है, मगर ITAT, AAR, ITSC पे भी नहीं है, वो लोग तो सब इक्विवेलेंट बॉडीज है, एंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे तो कैसे होगा, वहां पे तो हम प्रोटेस्ट करते, तो ऑब्वियसली दे आर सुपीरियर बॉडी। सबसे मेन सेक्शन ये था, जुरिस्डिक्शन इज इररिलेवेंट, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यू नीड टू नो। ऑफिसर चेंज होता है तो न्यू ऑफिसर हैज टू गिव यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग रीहर्ड बट ओनली इफ assessee is asking, वो सुओ मोटो नहीं दे सकता है। एंड लास्ट सेक्शन अगेन स्लाइटली इंपॉर्टेंट, पावर्स ऑफ IT अथॉरिटीज करके हमारा जो सेक्शन था, पावर्स ऑफ IT अथॉरिटीज करके हमारा एक सेक्शन है। व्हाट इज द पावर्स? What are the powers available to IT authorities? Same power as available to civil courts, discovery and inspection, enforcing attendance, issuing summons, production of books of accounts and documents and retaining in custody, maximum 15 working days, extension का 2 कंडीशन। ये तो हमारा चैप्टर IT अथॉरिटी सर्च एंड सीजर का चैप्टर स्टार्ट होता है सेक्शन 132 के ऊपर 3 कंडीशन दिया है। 131 या 142 विल नॉट रिस्पॉन्ड, हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, लेकिन ये दोनों केसेस में बेटर ऑप्शन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सो रियल लाइफ में सर्च विल बी कंडक्टेड when the assessing officer has information in his possession that assessee has got undisclosed money, bullion, jewelry or any other valuable article. What is sufficient information? Not defined. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी CBI अगर है तो information is not going to be considered sufficient. You will have to take authorization from your higher authority. CCIT, CIT will authorize additional joint deputy assistant ITO. Additional joint if empowered by CBDT will authorize deputy assistant ITO. Will assessee get copy of reasons? Na assessee, na CIT appeals, na ITAT. Directly copy of reasons will be in high court. Assessee का सिर्फ एक ही रेमेडी है, that is एक ही रेमेडी है। What is the only remedy? Writ petition. किसी को कोई copy of reasons नहीं मिलेगा। What are the powers of IT authorities? Virtually they can do anything. Enter, search, seize, ask you questions, break open locks. They can accept the following thing. ये चीज नहीं, इनको छोड़ के बाकी सब कर सकता है। क्या? They cannot seize stock, they cannot seal business premises and they cannot arrest you. इसको छोड़ के सब कुछ सीज कर सकता है। और अगर कोई बल्कि या पेरिशेबल एसेट है तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर दैट इज डीम्ड सीजर, रिस्ट्रेंट ऑर्डर भी बोल सकते हो, देके जाएगा। प्रोहिबिटरी ऑर्डर देके जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स एंड एसेट्स, What are the presumptions? Belong to the assessee, contents are true, sign, handwriting या attestation किसी का मिला तो of the same person of whom it appears। अगर कोई और IT अथॉरिटी ने, कोई और गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, कोई और ऑफिसर अंडर एनी अदर लॉ ने फोर्सफुली, माइंड यू इट हैज टू बी फोर्सफुली सीज किया है, तो इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग अ सर्च हम लोग उनको रिक्विजिशन भेजेंगे। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर पास करने के लिए यूज होगा एंड 30 days फ्रॉम ऑर्डर हम आपको वापस दे देंगे। एक्सटेंशन का सेम टू कंडीशन। एंड एसेट्स
अगर एसएससी ने एक्सप्लेनेशन दे दिया तो रिटर्न टू द एसएससी, और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो ऑक्शन करके हम लोग रिकवरी ऑफ टैक्सेस करेंगे। 133 बोलता है वी कैन कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी ओनली इफ देयर इज पेंडिंग प्रोसीडिंग। पेंडिंग प्रोसीडिंग है देन ओनली वी कैन कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, या फिर हमको DTAA रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर CCIT CIT ज्वाइंट डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पे वी कैन कॉल फॉर इट। यहां पे शुरू होता है सर्वे। सर्वे इज मेजरली सेम, वहां पे भी आपके प्रीमाइसिस पे आएगा, क्वेश्चन आंसर करेगा, मगर सर्वे में प्रीमाइसिस का रेस्ट्रिक्शन है। व्हाट? बिजनेस प्रीमाइसिस इन हिज ओन एरिया, आउटसाइड एरिया अगर आपका सेम एसएससी का बिजनेस प्रीमाइस है तो रेसिडेंशियल हाउस इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट एंड एट अ प्लेस वेयर चैरिटेबल एक्टिविटी इज बीइंग कंडक्टेड। ये 4 जगह पे सर्वे कर सकता है। फिर एक बार एग्जामिन करेगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स करेगा, एग्जामिन ऑल बुक्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल एसेट्स इन सर्च ऑल्सो एंड सर्वे ऑल्सो, सीज ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन सर्च ऑल्सो एंड इन सर्वे ऑल्सो। लेकिन सर्च में यू कैन कीप अप टू 30 डेज फ्रॉम ऑर्डर, सर्वे में 15 दिन के अंदर आपको वापस देना पड़ेगा, 15 वर्किंग डेज। एंड मेन डिफरेंसेस इन सर्वे सीजर ऑफ एसेट्स इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड। इन कोर्स ऑफ सर्वे यू कैन नॉट सीज एसेट्स। यहां पे डिफरेंस आ जाता है बिटवीन सर्च एंड सर्वे, अदरवाइज इसके पहले सब कुछ सेम है। सर्वे के अंदर सीजर ऑफ एसेट्स इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड। Are we clear about that? Survey can be conducted by TDS TCS officer also, and we can visit your function ceremony event also for survey, but we will wait for the function to get over. बाकी के कुछ जनरल पॉइंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ शेयर होल्डर रजिस्टर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड वो पावर टू पब्लिश एसएससी का इंफॉर्मेशन इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉर्मल सेक्शन गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ योर पोर्शन, असेसमेंट प्रोसीजर, स्टार्ट होता है विद रिटर्न फाइलिंग। सेक्शन 139(1) एवरी पर्सन इंक्लूड्स, किसको किसको रिटर्न फाइल करना पड़ा? एवरी कंपनी, एवरी फर्म इंक्लूडिंग LLP, अदर पर्सन इफ GTI that is income after exemption before deduction, और अब amendment before taking all your exemptions of 54 series 54, 54B, D, E, C, F, G, GA, GB, वो सब लेने के पहले की इनकम। मतलब ऐसा नहीं कि हम वो डिनाई कर रहे हैं, रिटर्न में वो सब एग्जेम्पशन ले लो, लेकिन इनकम की अमाउंट वो जो बेसिक एग्जेम्पशन क्रॉस कर रही है कि नहीं, ये सब एग्जेम्पशन लेने के पहले वेरी सरप्राइजिंगली 54 सीरीज के सारे सेक्शन मेंशन कर दिए एक्सेप्ट 54EE दैट इज इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स। उसको छोड़ के 54 सीरीज के सारे सेक्शन वहां पे मेंटेन कर दिए। ऑल सेक्शंस ऑफ 54 सीरीज हैव बीन मेंशन एक्सेप्ट 54E. You have to check income exceeding basic exemption. ROR having asset outside India as beneficial owner, as beneficiary both, clubbing लगेगा तो only beneficial owner. And और एक अमेंडमेंट आया है, if you have deposited in current account more than 1 crore, one account or multiple accounts, one bank or multiple banks, current account deposit exceeding 1 crore, return filing compulsory. If you have incurred foreign travel expenses exceeding 2 lakh, खुद का या किसी और का, एक ट्रिप का या मल्टीपल ट्रिप का, टोटल एक्सीडिंग 2 lakh in a year, then return filing compulsory. And if you have incurred electricity expenses exceeding ₹1 lakh, then again return filing is going to be compulsory. कब तक? ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए 30th November, then टैक्स ऑडिट के अंदर जो है, या ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ है, या वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म अंडर ऑडिट है तो 30th September, एवरी अदर केस 31st July. दिस इज टाइम लिमिट टू फाइल ROI. इफ आई मिस दैट डेट वी विल गो टू बिलेटेड रिटर्न। लेकिन पहले लॉस रिटर्न करते हैं 139(3), बीच के 1A 1B 1C वो सब फालतू है, वो सब टाइम वेस्ट मत करो। लॉस रिटर्न, रिटर्न डिक्लेयरिंग लॉस, लॉस रिटर्न सेक्शन 80 बोलता है 5 लॉसेस ओनली इफ यू फाइल योर ROI ऑन टाइम, बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, स्पेसिफाइड लॉस, कैपिटल लॉस, OMRH लॉस ओनली इफ यू फाइल ऑन टाइम। प्लीज दे दो ना 119। CBDT has the power to grant you all facilities, और जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता होगा, no doubt, but in income tax it is going to be CBDT. In income tax it is going to be CBDT. Are we clear? तो listen, 2 लॉसेस को नहीं अप्लाई करेगा, हाउस प्रॉपर्टी एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, एंड रूल विल अप्लाई ओनली इन द ईयर ऑफ लॉस, नॉट इन द ईयर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को ये प्रॉब्लम नहीं लगेगा। इफ आई मिस माई रिटर्न डेट आई कैन फाइल अ बिलेटेड रिटर्न अप टू एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ऑब्वियसली लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, 234A इंटरेस्ट भी लगेगा, F में फीस भी लगेगा, लेकिन CBDT कैन रिलैक्स एवरीथिंग। F का फीस क्या है? अप टू December 5,000, आफ्टर December 10,000, बट इनकम अप टू 5 lakh 1,000। कब तक फाइल कर सकते हो? एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर ये डेट भी मिस कर दिया तो वंस अगेन CBDT। सो हाउस प्रॉपर्टी UAD के लिए आप ये वाली डेट यूज कर सकते हो। इफ आई फाइल अ रिटर्न एंड आई नोटिस अ मिस्टेक, 139(5) रिवाइज रिटर्न, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, वंस अगेन अगर ये डेट मिस किया तो CBDT। ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे हो चाहे बिलेटेड हो, रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड ऑलवेज। हर टाइम इनकम बढ़ा के दिखाना है जरूरी नहीं है। इट कैन नॉट बी डन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, यू विल हैव टू फाइल अ फ्रेश ROI, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, गो एड्स इंडिया लिमिटेड। रिवाइज रिटर्न विल फुल्ली रिप्लेस योर ओरिजिनल रिटर्न एक्सेप्ट द डेट ऑफ फाइलिंग,
आर वी क्लियर अबाउट दिस? सो दीज आर सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ अवर रिवाइज रिटर्न. इसके बाद कुछ जनरल पॉइंट्स आते हैं जैसे डिफेक्टिव रिटर्न वगैरह आता है. इसमें 139 ए रिक्वायरमेंट टू अक्वायर पैन में एक अमेंडमेंट आया. एनी अदर नोटिफाइड, अब तक कुछ रूल्स थे, एनी पर्सन असेसेबल टू टैक्स, ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट, वो सब था. उसमें बोला है एनी अदर नोटिफाइड. 139A के अंदर अब एक बहुत बड़ा चेंज आया है. वेर एवर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस आर टेकिंग प्लेस एंड वेर एवर यू आर कोटिंग योर पैन, नाउ इंस्टेड ऑफ पैन यू कैन कोट योर आधार. एंड रिसीवर का ड्यूटी होगा वो ये वेरीफाई करें कि ये आधार वैलिड है कि नहीं, क्योंकि पैन वेरीफाई करना मुश्किल है, लेकिन आधार की वेबसाइट पे जाके आप ये आधार एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो वेरीफाई कर सकते हो. द रिक्वायरमेंट ऑफ पैन विल बी डन अवे विथ. नाउ दे आर सेइंग इफ यू हैव आधार बट यू डोंट हैव पैन, तो एक काम करो, रिटर्न फाइल करो, आधार नंबर डाल दो, हम तुमको अपने आप एक सिस्टम अलॉटेड पैन दे देगा. तुम्हारे पास पैन नहीं है, एप्लीकेशन मत डालो, नो नीड टू अप्लाई फॉर पैन, डायरेक्टली फाइल रिटर्न बाय कोटिंग आधार, हम खुद से ही तुमको एक पैन दे देंगे. और अगर आपके पास पैन है तो पहले आपको लिंक करना पड़ेगा. अगले सेक्शन 139AA ने पहले ही बोल दिया, लिंक पैन विद आधार अप टू अ नोटिफाइड डेट, नहीं तो योर पैन विल बिकम इनऑपरेटिव. फिर एज गुड एज आपके पास पैन नहीं है, आप अपना आधार से रिटर्न फाइल करो, नया पैन सिस्टम अलॉट करेगा. और अगर आपने लिंक कर दिया तो लिंक हो चुका है, आधार नंबर डालो, वी आर अवेयर ऑफ योर पैन. मतलब जहां जहां पैन का रिक्वायरमेंट था वहां वहां अब आपको पैन की जगह पे रिप्लेसमेंट के लिए विदाउट पैन ऑल्सो यू कैन डू एवरीथिंग विथ योर आधार. सामान्य आदमी का अधिकार आधार, you can do everything with your आधार. नाउ दैट्स द अमेंडमेंट दैट हैज टेकन प्लेस. इसके बाद व्हेन वी गो टू ड्यूटीज ऑफ असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, एक दो सेक्शन आप साइनिंग का, वेरिफिकेशन का, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, यू कैन गो थ्रू. ड्यूटीज ऑफ असेसिंग ऑफिसर, रिटर्न नहीं फाइल करेगा तो 142(1) नोटिस विदाउट एनी टाइम लिमिट एंड फेलियर, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड 10,000 पेनल्टी. यहाँ पे बेस्ट जजमेंट विदाउट शो कॉज नोटिस भी होता है. देन नेक्स्ट सेक्शन हमारा स्पेशल ऑडिट का, वेन एवर देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, हायर अथॉरिटी से परमिशन लेगा, आपको बोलेगा स्पेशल ऑडिट करा. ही कैन टेल यू एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, यू हैव टू गेट इट डन विद इन गिवन टाइम, maximum 180 days including extension. Once again failure will attract penalty of 10,000, best judgment assessment under section 144 show cause notice लगेगा. Whenever he has trust, faith, भरोसा on you, he will do intimation, that is summary assessment, accept everything but only if obviously you have filed ROI. Minor changes like arithmetical errors, incorrect claims, loss carry forward in belated returns, minor ये इनकम रिलेटेड चैप्टर 6 से डिडक्शन, वो भी बिलेटेड रिटर्न में नहीं मिलता है. माइनर करेक्शंस इज अलाउड टू मेक इन योर इंटीमेशन बट ही विल सर्व दैट इंटीमेशन टू यू. एंड एक बार इंटीमेशन आ गया उसके बाद भी रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटीमेशन इज नॉट असेसमेंट, इट इज ओनली कॉल्ड असेसमेंट, इट इज नॉट असेसमेंट. असेसमेंट कब होगा? हम रेगुलर असेसमेंट पे जाएंगे. 143(3) स्क्रूटिनी असेसमेंट ऑर्डर, 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, बोथ आर रेगुलर. कोऑपरेट किया तो 143(3), नहीं किया तो 144. स्क्रूटिनी के लिए पहले नोटिस आएगा 143(3) के ऑर्डर के लिए 143(2) में नोटिस आएगा. इट हैज टू बी सर्व्ड विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड. इसके बाद भी आप रिवाइज कर सकते हो क्योंकि ये नोटिस है, ऑर्डर नहीं है. एंड अगर फेलियर है, नॉन कंप्लायंस है, वंस अगेन पेनल्टी ऑफ 10,000 एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. सो इफेक्टिवली बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब हो सकता है? नॉन कंप्लायंस विद 142(1), 143(2) का नोटिस, 142(2) स्पेशल ऑडिट का नोटिस, और अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया 139(1)(4), देन ऑल्सो वी कैन डू बेस्ट जजमेंट बट वी विल गिव यू शो कॉज नोटिस. तो इसलिए 142(1) में हम ऑलरेडी, वो खुद ही एक शो कॉज नोटिस है तो वापस शो कॉज नोटिस देने का जरूरत नहीं है. 144 इज अपीलेबल ऑर्डर, लेकिन आपका अपील बहुत वीक होगा क्योंकि आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया, इज व्हाट यू विल हैव टू आंसर. आपको उसमें कभी भी रिफंड नहीं मिलेगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स पार्टी. व्हेन वी गो टू स्पेशल असेसमेंट, बीच में कुछ वो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड आपका ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग के रिलेटेड सेक्शंस, यू कैन गो थ्रू इट. स्पेशल असेसमेंट, रीअसेसमेंट, if there is any income escaping assessment, then we will give you notice under 148 within time limit of 149, normal time limit 4 years. Income escaping assessment 1 lakh और more हुआ या failure of assessee to disclose material fact हुआ तो 4 की जगह पे it will become 6 years from the end of the relevant assessment year. Asset outside India तो 16 years, non-resident का agent 6 years. Within the time limit of 149, we will give notice of 148 and pass order under section 147. Tax rates will be of the past year only. And if there is no impact on tax liability, notice can be dropped also. 4 years की टाइम लिमिट के अंदर JCIT का परमिशन लगेगा एंड 4 के बियॉन्ड CCIT, CIT का परमिशन लगेगा. एंड 150 has given us cases where it is not applicable. टाइम लिमिट उसके बाद भी आ सकता है. एंड 147 इज द मेन सेक्शन जिसने पहले तो सिचुएशंस दिया है दैट यू डोंट फाइल ROI और यू फाइल ROI लेकिन इंटीमेशन में आप चले गए, या फिर अंडर पेमेंट ऑफ टैक्सेस हुआ है, अगर आपका फॉरेन में एसेट है, अगर आपने ट्रांसफर प्राइसिंग ट्रांजैक्शन डिक्लेयर नहीं किया, अनलिमिटेड टाइम्स बट विद इन द टाइम लिमिट रीअसेसमेंट कैन टेक प्लेस. ओनली दोज मैटर्स दैट हैव नॉट गॉन इन अपील, रिवीजन एंड
रेफरेंस, जो अपील रिवीजन एंड रेफरेंस में गए हैं वो मैटर को हाथ नहीं लगा सकता है। एंड रीअसेसमेंट के अंदर आप फ्रेश क्लेम कर सकते हो, बट यू कैन नॉट गो बिलो द ओरिजिनली असेस्ड इनकम। हियर व्हेन यू गेट नोटिस ऑफ 148, असेसी कैन आस्क अ कॉपी ऑफ रीजंस, दैट वाज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सर्च में नहीं अलाउड था, लेकिन यहाँ पे अलाउड है, और अगर आपने नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वंस अगेन बेस्ट जजमेंट, खाली सेक्शन नंबर 147 बट मैनर ऑफ 144 ही रहेगा। फिर 153 आता है जिसने टाइम लिमिट ऑफ पासिंग ऑर्डर्स दिया है, रेगुलर असेसमेंट 12 मंथ्स फ्रॉम असेसमेंट ईयर, देन सर्च असेसमेंट 9, लेकिन अब फॉर नोटिस सर्व्ड आफ्टर नाउ इट विल बी 12 मंथ्स। लाइकवाइज अगर फ्रेश असेसमेंट है, इफ द ओरिजिनल असेसमेंट इज सेट असाइड बाय, दो ही लोग कर सकते हैं, सीआईटी अपील्स नॉट अलाउड, ओनली सीआईटी एंड आईटेट। सीआईटी सेट्स असाइड, आईटेट कम्युनिकेट्स, अगेन वहां पे भी 9 की जगह पे 12 मंथ हो गया। ऑर्डर गिविंग यू हैव 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, ऑर्डर ऑन फर्म फॉर ऑर्डर ऑफ द पार्टनर 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, एंड रीअसेसमेंट जो आपके 150 केसेस में होता है उसका टाइम लिमिट आपका अलग से दिया। इसमें जो पहले वाले फ्यू केसेस है, रेगुलर असेसमेंट, रीअसेसमेंट, फ्रेश असेसमेंट, इफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। टाइम लिमिट इज ओनली टू पास द ऑर्डर, कॉपी और डिमांड नोटिस आपको बाद में भी मिल सकता है। नो टाइम लिमिट फॉर डिमांड नोटिस इफ द ऑर्डर वाज पास्ड ऑन टाइम, एंड डिमांड नोटिस कैन डिमांड ओनली दैट अमाउंट विच वाज देयर इन द ऑर्डर। बीच में आता है 153A-B-C में आपका सर्च असेसमेंट, जैसे ही आपके असेसिंग ऑफिसर ने आपके इधर पैर रखा, इट इज ऑटोमेटिक रीअसेसमेंट ऑफ 6 years, ईयर ऑफ सर्च प्लस 6 years, एंड उसके पहले के 4 साल, दैट इज ईयर ऑफ सर्च से ईयर 7, 8, 9, 10, इफ दोज 4 years द कंसीलमेंट इज 50 lakhs और मोर in the form of immovable property, shares and securities, loans and advances और बैंक deposits, तो फिर हम लोग 6 की जगह पे 10 years ओपन करेंगे। Everything will be assessed here, your pending assessments will get cancelled, लेकिन appeal will continue, and time limit इसका जो दिया है वो 21 था, वो 18 हुआ, और अब तो वो 12 months हो गया है, 12 months हो गया है। एंड इफ वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर पर्सन देन वी विल हैंड ओवर दैट इन्फॉर्मेशन टू द अदर पर्सन, दैट वाज 153C। इसके अलावा असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर 2 छोटे पार्ट और है, रेक्टिफिकेशन, अपेरेंट मिस्टेक 154, नो फॉर्म नो फीस, एंड 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर के अंदर हो सकता है, लेकिन असेसी अप्लाई किया तो 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ के अंदर करना पड़ेगा। दोज मैटर्स दैट हैव नॉट गॉन इन अपील रिवीजन एंड रेफरेंस, उसका रेक्टिफिकेशन हो सकता है, ह्यूमन एरर एंड ऑल दैट विल गेट कवर्ड आउट हियर। एंड 155 रेक्टिफिकेशन ड्यू टू फ्यूचर इवेंट, एट द टाइम ऑफ पासिंग द ऑर्डर इट वॉज राइट बट इट बिकेम इनवैलिड बिकॉज ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। ये रेक्टिफिकेशन एंड लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस, रिप्रेजेंटेटिव असेसी, अगर डेथ है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड हुआ है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन तक, वरना लीगल हेयर विल बी डूइंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैक्सिमम लायबिलिटी विल बी इक्वल टू इनहेरिटेंस, एंड रिप्रेजेंटेटिव असेसी का भी राइट्स एंड ड्यूटीज, ये लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस में दिया है। दैट वाज अवर चैप्टर असेसमेंट प्रोसीजर, बिगेस्ट चैप्टर ऑफ योर पोर्शन। नेक्स्ट चैप्टर इज अ चैप्टर कॉल्ड अपील्स। 4 लेवल दिया है, पहले 2 को बोलते हैं अपील, सीआईटी अपील्स, आईटेट, एंड लास्ट 2 को रेफरेंस बोलते हैं बिकॉज हाई कोर्ट ओनली इफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। सीआईटी अपील्स 30 days, आईटेट 60 days, High Court 120 and Supreme Court 90 days. But High Court, Supreme Court only if there is a question of law. You have to follow the hierarchy, form, fees, time limit आपको abide करना पड़ेगा. This chapter is about learning the 4 levels of your appeal hierarchy. ये चैप्टर ही वही है, आपके अपील की हायरार्की के 4 लेवल को सीखना, वही आपका ये चैप्टर है. What is your chapter? 4 levels. 4 levels. मगर सबसे मेन यहाँ पे 9 orders which are non appealable. कौन सा? Interest under 234 ABC, ITAT on a question of fact. 264 में अगर आपका रिजेक्शन हुआ है या 264 में फाइनल ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग ऑल्सो नॉन अपीलेबल, एडवांस रूलिंग ऑल्सो नॉन अपीलेबल. और 3 आपको दिया है आपके पेनल्टीज के चैप्टर के अंदर. 270AA का एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ 270A पेनल्टी, जो एप्लीकेशन आप 270AA में करते हो, इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड नॉन अपीलेबल, मगर you can appeal against your tax liability. If the application is accepted, then your tax liability will be non-appealable. वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट उस कंडीशन पे होता है. एंड पावर ऑफ सीआईटी टू रिड्यूस और वेव इंटरेस्ट अंडर टू रिड्यूस और वेव पेनल्टी 273A सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 4, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी नॉन अपीलेबल. ये सबसे मेन एस्पेक्ट. इसके अलावा 4 लेवल अपील के हैं, वो कौन से ऑर्डर अपील हो सकते हैं, क्या फीस लगती है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, फॉर्म क्या भरना पड़ता है, यू कैन गो थ्रू. टाइम लिमिट इज इंपॉर्टेंट, 30, 60, 120 एंड 90. ये 4 लेवल पे जाने के लिए सम पावर्स और also given, वो powers also you can go through. the power to review
will be available only to High Court and Supreme Court. And इसके लास्ट में 2-3 जनरल सेक्शन, पावर टू अवॉइड रेपिटेटिव अपील्स 158A फॉर एसएससी, 158AA फॉर एओ एंड 268A अगर डिपार्टमेंट फर्दर अपील नहीं करता तो सेम केस कभी भी फ्यूचर में किसी भी एसएससी का होगा तो डिपार्टमेंट कैन नॉट अपील, लेकिन अगर रीजन वाज लेड डाउन मॉनिटरी लिमिट बाय सीबीडीटी देन डिपार्टमेंट विल बी अलाउड टू अपील इन फ्यूचर. दैट वाज आवर चैप्टर अपील्स एंड असेसमेंट के ही रिलेटेड जो हमारा लास्ट पार्ट 5 चैप्टर का जो सीरीज आता है, दैट चैप्टर कॉल्ड रिवीजन. 2 सेक्शन में कन्फाइंड है, 263, 264 बोथ आर पावर्स ऑफ सीआईटी. 263 अपीलेबल एट आईटैट बट 264 इज नॉन अपीलेबल. 263 में आपका टैक्स इंक्रीज होता है, 264 में डिक्रीज होता है. इफ देयर इज ऑर्डर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू तो 263 में सीआईटी उसको रिवाइज करेगा विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द ऑर्डर वाज पास्ट. यहां पे वो सुप्रीम कोर्ट का एलागेंड्रन फाइनेंस का जजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी मैटर रीअसेसमेंट में नहीं गया उसका टाइम लिमिट ओरिजिनल ऑर्डर से काउंट होगा. एंड 264 के अंदर ओनली इफ यू हैव एग्जॉस्टेड योर अपील का टाइम और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो टैक्स करवाने के लिए कम वहां पे जाएंगे, बिकॉज रिजेक्शन इज नॉन अपीलेबल, फाइनल ऑर्डर इज ऑल्सो नॉन अपीलेबल. और 264 और अपील आप दोनों साइमल्टेनियसली एक्सरसाइज नहीं कर सकते इवन फॉर डिफरेंट मैटर्स. 263 में क्या है, कुछ मैटर सीआईटी ने उठाए, कुछ मैटर्स आप अपील में चले गए, लेकिन 264 दोनों आपके ऑप्शन में है तो यू कैन नॉट इन्वोक देम simultaneously. 264 and appeal cannot happen together. That was our chapter called revision. 263, 264. Order of index के अंदर चलेंगे तो अगला चैप्टर हमारा आता है a chapter called income tax settlement commission. What is our next chapter? Income tax settlement commission. If you have been evading taxes since a lot of years, raise your hands and go surrender to income tax settlement commission subject to certain conditions. There has to be, you have to first make your application आपका accept होगा subject to certain conditions. सबसे पहले there has to be a pending proceeding. Only assessment, reassessment, search assessment and fresh assessment are covered. Appeal, revision, reference cannot be covered out here. Assessment, reassessment, search assessment and fresh assessment only if they are pending. That is the first condition. Minimum extra tax, normal case is more than 10 lakh and search case is more than 50 lakh and that also you have to pay before filing your application. Application has to be furnished in form 34B. AO को भी एक कॉपी दोगे then AO will stop progressing in your case further. 4 पेज में से 2.5 पेज का तो प्रोसीजर दिया है कि आप सेटलमेंट कमीशन के पास जाते हो, वो शो कॉज नोटिस देता है, फिर डिपार्टमेंट को चांस देता है. आफ्टर डूइंग ऑल दैट वन फाइन डे सेटलमेंट कमीशन विल पास एन ऑर्डर डिसाइडिंग टर्म्स ऑफ सेटलमेंट. इट कैन ग्रांट वेवर ऑफ पेनल्टी एंड इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन बट सेटलमेंट कमीशन इज नॉट एम्पावर्ड टू ग्रांट यू वेवर ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट. टैक्स एंड इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी कंपल्सरी. एक बार सेटलमेंट कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग. इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना अलाउड नहीं है, इट इज बाइंडिंग, नॉन अपीलेबल. और एक आदमी एक बार सेटलमेंट कमीशन पे गया तो दूसरी बार लाइफ में जा सकता है, बट इफ योर केस हैज बीन रिजेक्टेड या आपके ऊपर थोड़ी पेनल्टी या थोड़ा प्रोसिक्यूशन रह गया, इन 3 केसेस यू कांट गो फॉर द सेकंड टाइम. और आपके कुछ रिलेटेड पार्टीज भी है वेर यू हैव बीन होल्डिंग मोर देन 50%, दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू गो. सेटलमेंट कमीशन हैज ऑल द पावर्स एक्सेप्ट रिव्यू, क्योंकि वो खाली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है. एंड इंटरेस्ट अंडर 234 ABC वेव नहीं हो सकता. जो सेटलमेंट कमीशन की डिसाइड की हुई लायबिलिटी आप 35 डेज में नहीं भरते हो तो 36th डे से 1.25% इंटरेस्ट लगता है, वो वेव हो सकता है, लेकिन मेन इंटरेस्ट 234 ABC वेव नहीं हो सकता है. सेटलमेंट कमीशन ने अगर अपने ओन ऑर्डर को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया तो वो रिव्यू नहीं माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ओम प्रकाश मित्तल. अदरवाइज सेटलमेंट कमीशन हैज गॉट all the powers. That's our chapter settlement commission. If we talk about the chapter authority for advance ruling, obviously a part of international tax, both 30 marks as well as 100 marks के वाले इलेक्टिव में भी रिपीट होता है. नॉन रेसिडेंट को कन्वीनियंट एटमोस्फेयर देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मगर रेसिडेंट्स भी जा सकता है. कौन कौन जा सकता है? नॉन रेसिडेंट फॉर ओन टैक्स लायबिलिटी. रेसिडेंट कैन गो एंड आस्क टैक्स लायबिलिटी ऑफ नॉन रेसिडेंट. रेसिडेंट ओन टैक्स लायबिलिटी फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ 100 crore और मोर एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर पेंडिंग विद AO, CIT अपील्स और ITAT. यू कैन गो दिस. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ AAR में यहाँ पे उन्होंने बोला है ये चेयरमैन बन सकता है, ये वो बन सकता है, एक्सेट्रा, लेकिन लास्ट में बोला इवन इफ देयर इज इनवैलिड अपॉइंटमेंट द रूलिंग विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड. आपको लॉ का क्लैरिफिकेशन ट्रांजैक्शन करने के पहले ही मिल जाए दैट व्हाट इज एप्लीकेबल टू मी, DTAA और इनकम टैक्स एक्ट, नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट, स्लैब रेट और फ्लैट रेट, मैट और नो मैट. यू कैन टेक योर क्लैरिफिकेशन इन एडवांस. प्रोसीजर बहुत सिंपल. एप्लीकेशन आपको डालना पड़ेगा
application fees is non-refundable within 30 days. Here you can withdraw. Settlement commission you can't withdraw, but here you can withdraw and after 30 days also AAR की permission से after 30 days also you can withdraw. अच्छा ही है ना, उनको फीस वापस नहीं देना है और काम भी नहीं करना, बोला लेके जाते रहा एप्लीकेशन. प्रोसीजर बहुत छोटा सा है. You make an application, department also will be given a chance. दोनों को सुन के settlement commission will either give a ruling or reject. Reject करेगा तो opportunity of being heard. लेकिन 4 केसेस में रिजेक्शन विल टेक प्लेस विदाउट गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग heard. What are the cases where your application will be rejected without giving opportunity of being heard? अगर पहले 3 एप्लीकेंट, नॉन रेसिडेंट फॉर सेल्फ, रेसिडेंट फॉर नॉन रेसिडेंट एंड रेसिडेंट एक्सीडिंग 100 करोड़, इफ योर केस इज पेंडिंग एट एनी लेवल, तो आपका केस डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा. पेंडिंग मैटर्स में नहीं. पब्लिक सेक्टर कंपनी में ओनली इफ इट इज पेंडिंग एट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. एनी ट्रांजेक्शन डिजाइन फॉर टैक्स अवॉइडेंस एंड एनी ट्रांजेक्शन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, ये वाले केसेस में रिजेक्ट हो जाएगा. यहां पे भी जो ऑर्डर आएगा बाइंडिंग ऑन एसोसिएट डिपार्टमेंट एंड ट्रांजेक्शन ऑल्सो अगर आप फ्यूचर में कर रहे हो तो, और अगर फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन किया तो वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर होगा. AAR ऑल्सो हैज ऑल द पावर्स विच आर अवेलेबल टू IT अथॉरिटी. सेटलमेंट कमीशन के पास भी है, AAR के पास भी. That's our chapter called Authority for Advance Ruling. इंडेक्स के ऑर्डर में चलेंगे तो अगला एक चैप्टर टनेज टैक्स स्कीम, टोटली इररिलेवेंट डोमेस्टिक शिपिंग कंपनीज के लिए एक स्कीम ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. कंडीशंस बता देता हूं और कैलकुलेशन बता देता हूं जल्दी से. यू हैव टू बी अ क्वालिफाइंग कंपनी. क्वालिफाइंग कंपनी मतलब इंडियन कंपनी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया, क्योंकि फॉरेन शिपिंग कंपनीज के लिए 44 भी हमको अलग से दिया हुआ है. इंडियन कंपनी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट शुड बी इन इंडिया. तो आपका पहला कंडीशन ये है, यू हैव टू बी क्वालिफाइंग कंपनी. देन यू शुड बी ऑपरेटिंग, दैट कैन बी ओन्ड और रेंटेड, इट कैन बी फुल्ली रेंटेड और पार्टली रेंटेड बट ऑपरेटिंग. एंड क्वालिफाइंग शिप. क्वालिफाइंग शिप की 3 कंडीशन है. मिनिमम 15 नेट टनेज, रजिस्टर्ड विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट, या फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम DGS. और कैपेसिटी सर्टिफिकेट आपका इन फोर्स होना चाहिए. लेकिन उसमें भी कोई शिप कंप्लीटली डिस्क्वालिफाइड. एनी शिप वेर यू गेट लैंड लाइक फैसिलिटीज, फिशिंग वेसल, फैक्ट्री शिप, फिशिंग के लिए अगर 30 दिन से ज्यादा यूज किया है, प्लेजर क्राफ्ट, ऑफ शोर इंस्टॉलेशन, ऑल दैट इज गोइंग टू बी एक्सक्लूडेड, क्योंकि खाली ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनीज को हमको इंक्लूड करना था, वो ऑब्जेक्टिव था. वंस यू सेटिस्फाई द 3 कंडीशंस, हाउ विल यू कैलकुलेट टनेज इनकम? क्वेश्चन विल गिव यू 2 इन्फॉर्मेशन. दिस इज द ओनली थिंग. अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये बाकी पूरा छोड़ के जाओगे तो चलेगा. क्वेश्चन विल गिव यू 2 थिंग्स एज इन्फॉर्मेशन. क्वेश्चन आपको 2 बातें बताएगा. पहली बात कि इसका टन्स कितना है, कैपेसिटी कितना है, एंड दूसरी बात कितना दिन यूज हुआ था. कैपेसिटी का ऑर्डर में यू विल फर्स्ट टेक द टन्स, इग्नोर द केजीज, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100. इसके बाद स्लैब्स लगेगा. फर्स्ट 1000 टन्स 70 पर 100, नेक्स्ट 9000 मतलब 10,000 तक, 1001 से लगाकर 10,000 तक 53 पर 100, नेक्स्ट 15,000 मतलब अप टू 25,000 42 पर 100, एंड बैलेंस अगर कुछ है तो 29 पर 100. दिस इज गोइंग टू बी योर टनेज इनकम पर डे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, दैट इज गोइंग टू गिव यू योर टोटल टनेज इनकम. और अगर आपके इंसिडेंटल प्रॉफिट 0.25% ऑफ टर्नओवर फ्रॉम मेन एक्टिविटी से ज्यादा है तो वो एक्सेस भी यहां पे ऐड होगा. और इसलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना पड़ेगा. एक तो ये कंपनी है, ऊपर से इसको मैट में लेफ्ट साइड में ये बुक प्रॉफिट में आता है, इसका जो एक्चुअल इनकम होता है वो, एंड तीसरा इंसिडेंटल प्रॉफिट के लिए. सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी मेंटेन. दैट इज व्हाई इट इज प्रैक्टिकली इररिलेवेंट. प्रैक्टिकली आपका पूरा का पूरा इररिलेवेंट हो जाए. दैट इज अवर चैप्टर कॉल्ड टनेज टैक्स स्कीम. दैट इज अवर चैप्टर कॉल्ड टनेज टैक्स स्कीम. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? फैंटास्टिक. तो अब हम हमारे रिवीजन लेक्चर को अगले पार्ट में करेंगे. वी हैव कंटिन्यूड एंड क्रॉस्ड अवर 1 आवर, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.